there is no chemical, according to Paracelsus, who is called the father of toxicology. It is the dose which differentiates between a drug and a poison. It is the route of exposure and also the sex, the age, the criteria, they differ. वही चीज एक बच्चे और बूढ़े के लिए टॉक्सिक या प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, हो सकता है आपके और हमारे लिए नहीं। और अगर हम एग्जाम्पल लें पानी का, पानी की बोतल का, और इसमें साथ साथ पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है कि स्टोर्ड इन मटेरियल इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग कहेंगे कि इट इज द स्टोर्ड इन मटेरियल, और इन सारी चीजों को मैं आज के टॉपिक से ही रिलेट कर रहा हूं। पॉइंट ये है कि द स्टोर्ड इन मटेरियल इज इंपॉर्टेंट for a person who is transporting a chemical or a drug or a pharma product, but as a toxicologist we are also concerned on the capping and the raw material which is being used. The another aspect which comes with the raw material is what additives have been added during the fabrication of this product. And last but not the least, or which was first at the initial, water. The water itself has many perceptions, starting from double distilled water, triple distilled water, the surface water, groundwater, the alkaline water, mineral water, and so forth. तो पानी के ही अलग अलग रूप हैं, अलग अलग गाइडलाइंस हैं। तो starting, because fortunately we have the experts like Dr. J.P. Gupta, Dwivedi sir is there, who has been associated with me at Bureau of Indian Standards since 1990s. And the regulatory framework is one thing, and usage in the industry and the applicability becomes different. The another example which I can take is common salt, namak. All of you use the common salt at your different stages. सलाद में भी डाल रहे हैं, दाल सब्जी उब्जी में भी है, लेकिन जब हम ट्रांसफ्यूजन की बात आती है, if it is 0.9% it can be transfused, but if it is above or lower it may be a problematic. तो वही नमक जो कॉमन सॉल्ट एक तरफ हमारे लिए बहुत वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, और हम थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए उसको खा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसफ्यूजन की बात आए तो 0.9% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। In order to save time, now we'll be going ahead with the aspects a bit faster after setting the atmosphere, that the GHS for which I have been called is specifically the global harmonization. Why the harmonization and holistic approach is needed? This is because we have to think in a global scenario, and it is the term which he was using, OECD. The full form is Organization for Economic Cooperation and Development. Fortunately, India is one of the signatory, and amongst them it is a responsibility that whatever data is generated, it is acceptable throughout the world. There is a term which you can note it down is MAD, M-A-D. That is mutual acceptance of data. यहाँ पर हम एक और जो सवेरे से आप लोग कई बार सुना होगा वर्ड मैनेजमेंट. Being at the IIM, IITs and others, I would like to say management, there are thousands definitions and so forth, but the simplest one which you can follow is मैनेजमेंट को आप कैपिटल्स में लिखें. मैनेज के बाद जब आप अल्फाबेट्स में लिख रहे हैं तो we actually what we are doing, managing men, women and children tactfully. टी आखिर में आया, men के नीचे आपने women और children लिखा, और हम जिंदगी भर लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में, कंज्यूमर एंड पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम सेफ्टी डेटा शीट्स, लेबल्स, हैजार्ड्स अल्टीमेटली कन्विंसिंग वे में उस तक पहुंचा पाए जिससे कि ये यूज हो. अगर हम इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखें तो साथ साथ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे माइक्रोप्लास्टिक का एग्जांपल ले सकते हैं. जब बात शुरू हुई थी
आईआईटी मुंबई से माइक्रोप्लास्टिक की पानी में केवल माइक्रोप्लास्टिक्स पाया जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में जो डेटा है, जो रिवील किए गए हैं, जो वॉल्यूमिनस लिटरेचर आ चुका है, वो है it is in all the matrices including the soil, water, salt, even the breast milk. Now you can understand that how it has reached to the tissue level or to the milk level of any of the animals, including the human species. So the fragmentation and the nanotization of that or the degradation has led to this. There are issues about it, how we can monitor and judge about it. We have to see that the occupational health and the different aspects goes in a different way, and each one of us give a different roadmap. As just now it has been said कि अगर हम छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे पहलुओं को हम बड़े रूप में देखें, समझें, मिनिमाइजेशन की बात हो, आर कंसेप्ट्स की बात हो, हम स्टेप्स टू कंट्रोल एंड मिटिगेट, we can really follow that the workers, the consumers, the stakeholders and the common man, जहां बात शुरू हुई थी सवेरे कि common man कौन है, common man ultimately हम आप हैं. अगर हम रूल्स की बात करें, there is a big gap between the policy and the implementability. रूल्स में कमी नहीं है, बनाने में कमी नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ है? रूल हम ही ने बनाया, रूल को तोड़ने वाले भी हम हैं. जब हम कह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट इन 2 दिन के अंदर हम सब देख लेंगे खुद ही कि टाइम मैनेजमेंट आपने 10 से 5 के बीच में कहा, क्यों, किस, और बनाने वाले कौन है? हम और आप. So we can understand whether it is for assignment of job, responsibility, following of rules and other things. So coming to these pictograms and others. Pictogram बन तो गए, बना तो लिए, बहुत सोच समझ के बनाए गए, लेकिन इन पिक्टोग्राम्स को हम लेबल भी लगा दे रहे हैं. ट्रक्स पे भी है, केमिकल्स पे भी है, बॉटल्स पे भी है, लेकिन हम अगर पट्टी बांध के या हम बिना पट्टी बांधे एक्चुअली नहीं देख रहे हैं तो गलती किसकी है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन पिक्टोग्राम्स को हम अंडरस्टैंड करें for physical, environmental, chemical and other also gray areas which is not spelled out here, but we can understand कि कब वो ऑक्सीडाइजिंग है, कब वो एक्यूट टॉक्सिसिटी का है, कब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को दिखा रहा है, और साथ साथ उसके रिपरकशंस कहाँ हैं एंड हाउ इट इज लीडिंग टू द एसडीजी इम्पैक्ट्स. जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो हर केमिकल, आज पानी को हम केमिकल कहेंगे नहीं, लेकिन वो एक्चुअल कहिए तो इट इज H2O is 2 hydrogen and 1 oxygen. the H2O 1 oxygen. और पानी के लिए भी फूड में हम उसको क्या केमिकल के रूप में देखते हैं? अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो हम गाइडलाइंस में भी बार बार ये कहते हैं कि फूड इज मटेरियल विच कैन बी इजीली टेकन अप. दूसरी तरफ अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो जो बॉन्डिंग है इसमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं या प्यार की या दोस्ती की बॉन्डिंग कहते हैं. So we can understand that how the things really shape on biological hazards and biological hazards की सारे पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन अगर हम इन डिटेल्स में जाएं तो 1 घंटा करीब करीब इसी में लग सकता है. इसलिए मैं केवल पॉइंट्स देके आपको थोड़ा थोड़ा कि पीपीज की बात क्या है, गुड हाइजीन और सैनिटेशन की बात क्या है, डिस्पोजल क्या है, क्योंकि बहुत जगह वेस्ट डिस्पोजल इज अ बिग इशू. और जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, चाहे वो 6 सिग्मा हो, काइजन हो या ISO 17025 हो, ये सारी बार बार यही कह रहे हैं सारे गाइडलाइंस. चाहे 22000 की हम बात करें फूड सेक्टर में, चाहे हम एनर्जी सेक्टर में, उन सारी जगहों पर रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, handling of the test item and also standardization and validation and management review at the different stages. तो हम summary way में जैसे कहते हैं ना कि गीता का सार 1-2-4 लाइनों में, वो मैंने आपको जिक्र किया है. मैनेजिंग बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, हम जब एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप बढ़िया सा परफ्यूम ले जा रहे हैं या पाउडर ले जा रहे हैं, लेकिन उनको डाउट होता है कि कहीं ये बायोलॉजिकल हैजार्ड तो नहीं है, और वो कहते हैं इसको आप नहीं ले जा सकते.
लेकिन उस बायोलॉजिकल हैजार्ड के नजरिए में क्या छिपा है? इट कैन बी वायरसेस, इट कैन बी द डिफरेंट टाइप ऑफ moieties which can be there, and these products may be injurious because it is also anticipated that in the coming years, in the coming eras, there can be a biological hazard. हम लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें कि वो कोविड कहाँ से आया, क्यों आया, कौन सा स्ट्रेन था, लेकिन उसी तरीके से बायोलॉजिकल हैजार्ड्स को प्रिवेंट करना एक महज जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारी एक आवश्यकता भी है। अगर हम OECD या ओशा की बात करें, NIOSH की बात करें, तो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं और उसमें छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, सैनिटाइजर हो सकता है। हम इम्पैक्ट्स की अगर बात करें तो एक्यूट, क्रोनिक, डर्मल, इनहेलेशन, पल्मोनरी, देयर कैन बी वेरियस रूट्स। तो हम जब COPD की बात करते हैं तो वो केवल टायर के जलने से नहीं, प्लास्टिक के जलने से नहीं, बल्कि वो अनेकों रूप में हम बात उठती है कि न्यूज़पेपर में निकला कि पराली से आपको दिक्कत हो रही है। हम सभी लोग कहने लगे कि हाँ, आप जो इतनी दिक्कत हो रही है वो पराली से हो रही है। क्या वो दिक्कतें धूल के कण, नैनो, अगर हम 10 to the power -9 की बात करें, इट कैन कम फ्रॉम द वेरिड सोर्सेज इंक्लूडिंग द what we see on the streets, and it is the fragmentations of the tire and other products. So we have to understand what is the specific target. When I teach in the Academy of Scientific and Innovative Research and we find about the target and non-target organs, we have to understand when we are talking about the hepatotoxicity or the nephrotoxicity or the reproductive toxicity, the examples of phthalic acid esters, which is a phthalate, which is a basic moiety as a stabilizer or as a plasticizer and stabilizers. These are the moieties you might have heard about. bisphenol A, जिन लोगों के घरों में छोटे बच्चे हैं, वो आप जब बच्चों के लिए बॉटल लेने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है BPA फ्री, और ये एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप BPA फ्री बॉटल्स खरीदें। लेकिन दूसरी तरफ ATMs वगैरह में जो हमारी प्रिंट आउट्स निकलता है उसमें भी BPA है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारा नजरिया एक पे हो, इसीलिए मैंने वो कपलेट सुनाया था, इट डिपेंड्स कि आपका चश्मा कैसा है, आपका नजरिया क्या है। आप उसे, जैसे कहा जाता है, ब्यूटी इज स्किन डीप। अब उस ब्यूटी को ढूंढने में हम केवल हम डिफरेंट क्रीम्स, लोशंस की बात कर रहे हैं, या फिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, या डिफरेंट प्रिवेंटिव मटेरियल्स की, या इवन UV स्टेबलाइजिंग क्रीम्स। So what we have to find that the toxicological or ecotoxicological impact in the varied terms, और अगर हम ecotoxicological studies की बात करें या biological system की बात करें तो उसमें डेफनिया, fishes are the best indicators of any of the contaminants, and that we have to understand from the OECD concepts, and these guidelines are OECD, you might have heard about the 202, 407, 408 and so forth. So these guidelines, fortunately, I have been handling them as a quality assurance unit for about last 30-35 years. In the NABL as well as the GLP, और हम जब NABL और GLP की बात कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि ये सीधे US से बात आ रही है। नहीं, ये आपके घर, आपके केवल 70-80 किलोमीटर की दूरी पर वर्ल्ड क्लास लैबोरेटरी है, और you can take the advantage of it. So in India, we are not far behind. We have the good resources, we have the academic facilities, we have the experimental facilities. Only the thing is, they are some way a bit costly for the Indians, but in the US terms, they are very, very cheaper. And thus, these facilities are available and they can be taken SS. When we see about the challenges, there are multiple challenges, but there are hidden opportunities thereby. द्विवेदी साहब से अक्सर बात होती है चाय और कॉफी के साथ, हम लोग कभी कभी एयरपोर्ट पे साथ साथ मिल जाते हैं, और ये बात होती है कि क्या इसमें चैलेंज है, तो नहीं, बहस होती है, उसमें दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि टॉक्सिकोलॉजी या प्लास्टिक के फील्ड या ऑक्यूपेशनल में हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज में जो आप जैसा ग्रुप है जो सेफ्टी देख रहा है, उसमें भी हमें सेफ्टी, चाहे इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे उसके इम्प्लीमेंटेबिलिटी की देखें, तो वहां पर एक नया फैक्टर जो ऐड किया गया है गाइडलाइन में, वो है डिसीजन ट्री। पहले हम कहते थे केवल ये हादसा हो सकता है। फॉर्चुनेटली भोपाल के केस में मुझे 2 बार जाना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और दोनों बार अलग अलग तरीके से पहलू देखा। एक तो था जिसमें कि एयर वाटर सैंपलिंग
और सॉइल की सैंपलिंग हुई। दूसरा, नीरी की रिपोर्ट को रीवैलिडेट करना था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में, और हम 4-5 मेंबर्स की टीम थी और उसमें देखा। दूसरा, जो सुपर साइक्लोन की बात थी पारादीप में, तो एक तरफ इनकी जैसी संस्थाएं, हमारे जैसे CSIR की संस्थाएं मेहनत कर रही हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको बताने में मैं निसंकोच कह सकता हूं कि एक तरफ सप्लाई और इसकी बात है, आप जैसे लोगों ने, कॉमन मैन ने बहुत सा डोनेट किया, लेकिन वो कहां पड़ा रह गया? स्टेशन पे। सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसके बाद, चाहे वो पानी के लिए बात हो, चाहे अन्न की बात हो, जब हमने 2-3 बार विजिट किया उसी पारादीप के एरिया में, तो देखा कि जब एक तरफ तो लड़ रहे थे कि हमें शुद्ध पानी मिल जाए, और दूसरी तरफ जब हम लोग CSIR की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए गए वहां पर, तो देखा कि जो जनरेटर या जो वाटर फिल्ट्रेशन असेंबली लगाई गई थी, वो 1-2 महीने बाद किनारे रखी है, और पानी वो कौन सा पी रहे हैं? जो नॉर्मल है। तो गलतियां दोनों एंड पे हैं, स्टेक होल्डर्स पे भी, और एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन डिसीजंस के साथ साथ हमें जरूरत है कि हम नए कॉन्सेप्ट्स और नई यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज को सही तरीके से ले चलें। तो अगर हम बात हॉलिस्टिक हीलिंग की बात करें, इसको फिलॉसफी और साइंस और कंसेप्ट से जोड़ें, तो योग जब योगा हो के आता है तब हम मान लेते हैं, और जब हम यहाँ का रहता है तो कहते हैं वो कानपुर से लखनऊ वालों ने बताया है, तब तक नहीं वैल्यू है। लेकिन अगर वो US से आई है बात, तो हम उससे वैल्यू करने लगते हैं, अंडरस्टैंड, जबकि हमारे यहाँ वो सारी फैसिलिटीज और इंफ्रा और क्वालिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस और QA/QC दोनों ही चीजें हैं। तो अगर हम ऑक्यूपेशनल को हॉलिस्टिकली सोचें, तो इसमें जैसे कोविड का एक एग्जाम्पल है, और वहां पर कर्क्यूमिन, जो हल्दी में अगर हम अपने मसालदानी देखें, उसमें हमें बहुत सी चीजें मिल जाती हैं जो कि हितकर है, और चाहे उसमें मेथी की बात हो, हल्दी की बात हो, लौंग की बात हो, इलायची की बात हो, काली मिर्च की बात हो। और काली मिर्च और टर्मरिक जब हम कहते हैं तो आपको लगता है कोई देहाती बोल रहा है, लेकिन हम जब कर्क्यूमिन और पेपराजीन करके कहते हैं तो आपको लगता है इट इज अ हाई लेवल, और उसकी हम रिएक्शन मैकेनिज्म अभी समझाने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है और अच्छी है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स कैन बी देयर इज सिमिलरली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट हैजर्ड एंड रिस्क, and risk is about to be, what can be, what is the root cause, and as it was said by the former DG and others, it is we have to understand कि जो सक्सेना साहब साधारण शब्दों में कह रहे थे, गुप्ता जी अपनी साधारण बिल्कुल लहर में कह रहे थे, उन सारी बातों को अगर हम जैसे कहते हैं ना गांठ बांध के, तो हम समझ सकते हैं आसानी से कि रिस्क और हैजार्ड या एक्यूरेट कुछ टर्म्स हैं जो बड़े क्लोज लगते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। जैसे एश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ASSURANC, ENSURANC और INSURANC। जब उससे कमाई करने लगता है और इंश्योरेंस वाला आपका प्रीमियम ले जाता है, तब आपको लगता है बहुत बढ़िया, जरूरी है। और जब एश्योर और इंश्योर की बात कहते हैं तो आपको लगता है ये तो रोज सुनना है। एक्यूरेट और प्रिसाइज, कॉम्पिटेटिव एंड कॉम्पिटेंस, हमें हर जगह कभी जरूरी नहीं है कि डिग्री हो, कि MSc PhD और ये, बल्कि कभी कभी हम कॉम्पिटेंसी को ढूंढते हैं, और वो हमारी रिक्वायरमेंट है ISO गाइडलाइन में और OECD में भी, कि बंदा जिस काम के लिए रखा गया है वो सही कर रहा है कि नहीं। अगर सपोज इस कैमरे का ऑपरेटर है या एंकरिंग करने वाले, अपनी कोई जरूरी नहीं है कि उनको एसोसिएट प्रोफेसर की डिग्री हो उनके पास, या उनको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन हो। द मेन पॉइंट इज हाउ शी और ही इज कॉम्पिटेंट टू एंकर अबाउट इट। सो आई कम टू द concluding points nearby, that what we have to design, train, implement, and there is a concept of Deming's theory which is called as a 4 alphabet, जो आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, plan, do, check, act. This is called as a PDCA concept. ये मैनेजमेंट वाले जब IIM में पढ़ाते हैं तो समझ में आता है मैनेजमेंट कंसेप्ट। जब हम साइंस की दुनिया में बात PDCA कंसेप्ट कहते हैं तो शायद कभी कभी आसानी से हम उसे सहज नहीं कर पाते हैं। So what we have to see about the biasness, the productivity increase, compliance, improvement, and these improvement strategies. Earlier in the guidelines there was preventive approaches, but now there is a corrective and preventive actions.
पहले हम उसे काबा कहते थे, आज हम उसको सिंपली कहते हैं there should be more preventive approaches rather than just corrective actions or preventive actions. So we have to come to the next point, that how we can really think about the occupational health in the upcoming scenario, and this takes me to the labeling, classification, biohazards, hazards, risk mitigation. So it is more to be understood and less to be just seen about it. So we can understand that it takes to the action of quality aspects at the different level, whether it is an injection, a chemical, a drug, a common salt. जब वो कॉमन सॉल्ट 4 रुपए किलो मिलता है तो हमें दूसरा लगता है, जब वो